Hello everyone. Today we are going to start our second chapter, that is Elephant Feast by Suchanda Sarkar. This is a story narrated by a grandma to her grandchildren, which emphasizes the fact that elephants are very intelligent creatures and they are very caring, protective and completely unselfish animals. Now, the writer of our story, Suchanda Sarkar, is a retired teacher, translator, and a writer of children's texts. She taught for 11 years in Nigeria and for 20 years in Kolkata. One of her great pleasure is to read children's literature. In her teaching career, she felt most fulfilled when she could open the doors of the world of imagination for her pupils. She still feels inspired and happy to discover new words and new people. Now our chapter Elephant Feast. Feast means a large meal. Okay. Say what is common to these pictures. Okay. Now four pictures have been given here. Okay. First one is beehive. This is the living place of bees. Beehive. Next is there is tailor bird. It has stitched the leaves to stay in them. This is the nest for it. Okay, and these are the ant hills. Okay, ants made hills to stay in them, to live in them. Okay, and next is tent. It is made by humans. So it's very clear from these pictures that every living thing need shelter or need a home. Okay, all living things need shelter and all living things also need food to live. Now our chapter Elephant Feast. The children snuggled up to grandma. It was story time and grandma had a lot of interesting stories to share. In this story, the children settled into a comfortable way in the lap of their grandmother and asked her to tell them a forest story or about her own experiences in life. At this, grandmother chooses to tell them an elephant story which will tell them that how intelligent, caring and organized creatures elephants are. So the children snuggled up to grandma. वो अपनी मदर ग्रैंड मदर की गोदी में कंफर्टेबली बैठ जाते हैं. इट वॉज स्टोरी टाइम एंड ग्रैंड मदर हैड अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरी टू शेयर. अब उनका कहानी सुनने का समय था और ग्रैंड मदर के पास बहुत सी स्टोरीज थी इंटरेस्टिंग उनको शेयर करने के लिए उनके साथ. टेल अस वन ऑफ योर फॉरेस्ट स्टोरीज ग्रैंडमा, सेड ईशान. ईशान ने कहा ग्रैंडमा हमें फॉरेस्ट स्टोरीज सुनाओ, फॉरेस्ट के बारे में, जंगल के बारे में कहानी सुनाओ. यस सेड नील, द वन अबाउट द टाइगर. नील ने कहा हाँ, उस टाइगर के बारे में, एक टाइगर के बारे में सुनाओ. No, tell us one of your elephant stories, like the one about the newborn elephant calf that made you fall, or the one about the wild elephant that rubbed its back against your house and you thought it was an earthquake. Were you frightened, Grandma? Now, one of their her grandson, he says that no, tell us elephant stories. वो जो नए न्यू बॉर्न बेबी एलिफेंट था उसके बारे में जिसने आपको गिरा ही दिया था, और या फिर उस वाइल्ड एलिफेंट के बारे में जिसने अपनी पीठ को किसके साथ रब कर दिया था, उसके साथ घर के साथ आपके, और आपको लगा कि अर्थक्वेक आ गया है. क्या आप बहुत डर गई थी दादी माँ? ओह यस आई वॉज. कह रही हाँ मैं डर गई थी. वेल आई शिल टेल यू एन एलिफेंट स्टोरी विच विल शो यू हाउ इंटेलिजेंट दीज एनिमल्स आर. तो शी सेज दैट आई विल टेल यू एन एलिफेंट स्टोरी, कि एक एलिफेंट स्टोरी बताऊंगी मैं जो आपको बताएगी दैट हाउ इंटेलिजेंट दीज एलिफेंट्स आर, कि एलिफेंट्स जो हैं वो कितने इंटेलिजेंट होते हैं. दे आर ऑल्सो वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड केयरिंग क्रीचर, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और केयरिंग होते हैं, परवाह करते हैं एक दूसरे की.
Long ago, when your grandpa was a forest officer, he was sent to Bengdubi. वो बताती है कि बहुत देर पहले जब तुम्हारे दादा जो थे, he was a forest officer, जंगल में ऑफिसर थे, ही वॉज सेंट टू बेंगदूबी. वो कहाँ उनको सेंड किया गया, कहाँ भेजा गया? बेंगदूबी में, जगह का नाम है. इट इज अ फॉरेस्ट आउटपोस्ट. ये क्या है? जंगल में है, आउटपोस्ट है, स्मॉल कैंप है, नियर सिलीगुड़ी. सिलीगुड़ी के पास है, एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस. कहाँ है सिलीगुड़ी? हिमालयस के फुट हिल्स में. दिस एरिया इज नोन एज द दुआर्स, विच मीन्स डोर्स, डोर टू द माउंटेन्स. इस एरिया को कहते हैं द्वार, जिसका मतलब क्या है? डोर टू द माउंटेन्स, के माउंटेन्स का दरवाजा, डोर. ही वॉज सेंट देयर टू चेक आउट what the people living there called the elephant menace. वो वहाँ क्यों सेंड किया गया था, भेजे गए थे उसके हस्बैंड, मतलब उनके ग्रैंडफादर, कि वो चेक करें कि जो एलिफेंट मेनेस लोग कह रहे हैं वो क्या है. एलिफेंट मेनेस मीन्स एलिफेंट्स के द्वारा क्रिएट किया गया प्रॉब्लम. What this meant was that wild elephants were wandering into rice fields. एलिफेंट्स मेनेस क्या था कि वो जो वाइल्ड एलिफेंट्स थे वो क्या करते थे? राइस फील्ड्स थे, जो खेत थे चावल के, उसमें घूमते थे. एंड ईटिंग अप द क्रॉप्स एट नाइट, और खा जाते थे वो फसल को रात को. द नाइट गार्ड्स ट्राई टू स्केयर ऑफ द हंग्री बीस्ट. जो रात गार्ड्स होते थे वहाँ पे, वो ट्राई करते थे कि ये जो हंग्री एनिमल्स हैं इनको डराया जाए, स्केयर ऑफ, डराया जाए. बट द एलिफेंट्स वर नॉट सो इजीली फ्राइटेंड. पर एलिफेंट्स को इतनी इजीली डराया नहीं जा सकता. योर ग्रैंडपा वेंट आउट टू इंस्पेक्ट. तुम्हारे कह रही दादा गए वहाँ. टू इंस्पेक्ट मीन्स टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली, चेक करने के लिए कि what was the problem, inspect the place. He found that a large part of the forest had been cut down. तो उन्होंने क्या पाया कि बहुत बड़ा जो फॉरेस्ट का हिस्सा है that was cut down, उनको काट दिया गया था. Only a very narrow stretch of the old forest area remained. बहुत ही छोटा कम पार्ट जो था उसका फॉरेस्ट का, that was remained, बच गया था. एंड द एलिफेंट्स लिव देयर. और यहाँ पे कौन रहता था? एलिफेंट्स. एलिफेंट्स नीड अ बिग प्लेस टू लिव इन. एलिफेंट्स को बहुत बड़ा प्लेस चाहिए होता है रहने के लिए. एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ फूड, और बहुत सारा खाना चाहिए होता है रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए. द पीपल हैड टेकन दीज अवे. और लोगों ने ये छीन लिया था. हाउ वुड यू फील इफ योर होम वॉज टेकन अवे. कैसा लगेगा आपको कि आपका घर अगर छीन लिया जाए. एंड यू डिडंट हैव एनफ टू ईट. और आपके पास खाना भी ना हो इतना खाने के लिए. When grandmother asks her grandchildren that how would one feel if one's house and food was taken away, at this Neil, her grandson, says that they would feel, one would feel very bad. As their living place and food had been taken away, they were angry and hungry. So they were attacking people and their food. Now, very bad of course, said Neil. Neil said that बहुत बुरा लगेगा. Well, the wild elephants kept getting hungrier and hungrier. अब उन्हें बहुत भूख लग रही थी एलिफेंट्स को, क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा था. एंड दे ऑल्सो बिकेम एंग्री. और उन्हें बहुत गुस्सा भी आ रहा था. Once they even chased a man down the forest road and broke a wall of a house in search of food for their little ones. और एक बार तो उन्होंने एक आदमी का पीछा किया जंगल की जो रोड जा रही थी उसमें, उससे. एंड और क्या किया? घर की दीवार तोड़ दी खाना ढूंढने के लिए अपने बच्चों के लिए. Not far from the village there was an old granary where the farmers stored their grain till they could sell it to a merchant. तो गांव से
ज़्यादा दूर नहीं था जहाँ पे एक ग्रेनरी थी। ग्रेनरी क्या है? अ प्लेस वेयर ग्रेन इज स्टोर्ड, जहाँ पे वो जो फसल बचती है वो रखते हैं बेचने के लिए, मतलब जो उगाते हैं फसल उसको सेव करके रखते हैं फिर सेल करने के लिए, बेचने के लिए। तो every early one morning an elephant, clearly the leader of the herd, appeared at the greenery. अर्ली वन मॉर्निंग, एक सुबह बहुत जल्दी था जब एक एलिफेंट, विच वॉज वेरी क्लियर कि ही वॉज द लीडर ऑफ द हर्ड, एलिफेंट्स के हर्ड का लीडर था, ग्रुप का, अपीयर्ड एट द ग्रीनरी, वहाँ आया ग्रीनरी पे। आफ्टर लुकिंग अराउंड फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए उसने इधर उधर देखा। इट रिटर्न टू इट्स हर्ड, और फिर ये अपने ग्रुप में वापस चला गया। A little later, two men who were on their way to the greenery, थोड़ी देर के बाद, a little later, after some time, two men, दो आदमी जो कहाँ जा रहे थे? ग्रीनरी की तरफ। saw the herd move towards the greenery in an almost military order. क्या देखा उन्होंने? कि वो जो एलिफेंट्स हैं वो जैसे मिलिट्री का वो जाता है ग्रुप, वैसे जा रहे हैं किस तरफ? ग्रीनरी की तरफ। The alarmed men, alarmed means afraid or worried, men speedily climbed a banyan tree. वो जल्दी से पास में बनियन ट्री था उस पे चढ़ गए, एंड हिड themselves among its leafy branches, और उसकी जो छायादार वृक्ष होता है बनियन ट्री, और उसमें छुप गए उसकी ब्रांचेस में। दे वॉच द एलिफेंट्स, उन्होंने वो एलिफेंट्स को वॉच कर रहे थे, देख रहे थे कि क्या कर रहे हैं एलिफेंट्स। द वॉल्स ऑफ द ग्रीनरी वर थिक एंड स्ट्रॉन्ग, वो जो ग्रीनरी की वॉल्स थी बहुत थिक थी और बहुत स्ट्रॉन्ग थी। बट द एलिफेंट्स सीम्ड टू हैव अ प्लान, पर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पहले से ही प्लान बना रखा था एलिफेंट्स को। दे नो इट वेरी वेल कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वन एलिफेंट वेंट अराउंड इट ऑलमोस्ट एज इफ इंस्पेक्टिंग इट, एक जो एलिफेंट था वो चेक कर रहा था, आसपास घूमा, उसने चेक किया। वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ द हर्ड then took up a position at a corner of the greenery and started pounding the wall with its tusks. तो जो एक था बड़ा सा एलिफेंट था वो खड़ा हो गया वहाँ, उसने पोजीशन ले ली ग्रीनरी के पास, और पाउंडिंग मीन्स बीटिंग लाउडली एंड फोर्सफुली, जोर जोर से उसको धक्के मारने लगा वॉल को, विद इट्स टस्क्स, अपनी वो सूंड से। व्हेन इट वाज टायर्ड अनदर टुक इट्स प्लेस, जब वो थक गया तो दूसरा आ गया उसकी जगह पे, एंड देन अनदर, और फिर उसकी जगह पे एक और आ गया। टिल सेवरल ब्रिक्स गेव वे, जब तक के काफ़ी सारी जो ईंटें थी वो निकलने गई वहाँ से, टूट गई, मीन्स उनकी दीवार। एन ओपनिंग वॉज मेड, तो रास्ता खुल गया। एंड सून एनलार्ज्ड, और जल्दी ही एनलार्ज्ड मीन मेड लार्जर और बिगर, और बड़ा कर दिया उन्होंने उस रास्ते को। When they had made a big hole, जब उन्होंने उसमें बड़ा सा होल बना दिया, enough for an elephant to enter, ताकि एक एलिफेंट उसमें एंटर कर पाए, the herd divided itself into groups of 3, तो वो जो ग्रुप था उसने अपने आप को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और 4 या फिर 4 में, since only a few could find room inside, क्योंकि वो ग्रीनरी इतनी बड़ी नहीं थी और थोड़े से एलिफेंट्स ही उसमें आ सकते थे, क्योंकि एलिफेंट इतना बड़ा होता है ना। Then one by one each group entered the greenery to feast on the paddy. फिर क्या हुआ? एक ग्रुप जाता, वो अच्छे से फीस्ट करता, मीन्स अच्छे से पेट भर के अपना खाना खाता, खूब अच्छे से। पैडी राइस को कहते हैं। When one group had eaten all it could, its place was taken by another. जब एक ग्रुप जो था वो अच्छे से खाना खा लेता, जितना वो खा सकता था, तो दूसरा ग्रुप जाता। वन ऑफ द एलिफेंट्स स्टूड सेंटिनल एट अ डिस्टेंस, सेंटिनल मीन्स गार्ड बन के खड़ा था, तो उनमें से एक जो था एलिफेंट वो खड़ा था वहाँ पे, वो सिर्फ गार्डिंग कर रहा था, देख रहा था कि कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है। आफ्टर ऑल द एलिफेंट्स हैड फीस्टेड, जब सबने खाना खा लिया अच्छे से, टू देयर फुलेस्ट, अपना पेट भर के खाना खा लिया, द सेंटिनल ट्रम्पेटेड लाउडली,
तो वो जो सैनिटर था, गार्ड था, वो उसने अपना वो आवाज़ निकाली एलिफेंट्स की, एंड द हर्ड रश्ड ऑफ इनटू द फॉरेस्ट, और जो सारे जो एलिफेंट्स थे सब भाग गए जंगल में। वाओ ग्रैंडमा सेड ईशान, दैट जस्ट लाइक एन आर्मी रेड। कह रहा वाओ दादी माँ, ये तो इट वॉज जस्ट लाइक एन आर्मी रेड, कि आर्मी की जैसे रेड पड़ती है, सडन अटैक होता है आर्मी का ऑन अ प्लेस, लाइक दैट इट वॉज लाइक दैट। यस सेड ग्रैंडमा, उसने कहा हाँ, एज आई टोल्ड यू बिफोर, एलिफेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट क्रीचर्स। जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया, एलिफेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ऑल्सो रिमेंबर दैट दे आर वेरी केयरिंग, प्रोटेक्टिव एंड कम्प्लीटली अनसेल्फिश एनिमल्स टू, कि वो बहुत ही केयरिंग होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं और बहुत ही अनसेल्फिश होते हैं, बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं होते, बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं होते हैं वो। ठीक है, दिस इज अ स्टोरी बाय सुचंदा सरकार। PDF of question answers is in the description box, and thanks for watching my video, and do subscribe my channel if you have not done it yet.